First of all, we will start with what is correlation. Anybody knows what is correlation? Yeah, ma'am, correlation, it shows or defines or calculates the strength and direction of the relationship between two variables. Right. It tells us about the association between variables. Yeah. Or it tells us about the degree and extent and direction of relationship between the two variables. Right? Yeah. Am I audible? Yeah, ma'am. And screen is visible? Yeah. Yes. Now, correlation is a statistical tool that helps to measure and analyze the degree and direction of relationship between two variables. Now, degree means magnitude, that whether the correlation is 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, that is called as degree. And direction is in which direction the relationship exists, that whether the increase in one variable is associated with increase in another variable, or whether increase in one variable is associated with decrease in another variable. If increase in one variable is associated with increase in another variable, then it is positive correlation. But if increase in one variable is associated with decrease in another variable, then it is negative correlation. Now, correlation that tells us actually the correlation technique that we use, that is Karl Pearson correlation technique, that covers only linear correlation. That covers only linear correlation between the two variables. Now, how we can classify correlation on the basis of direction of relationship? It is positive correlation or negative correlation. Positive correlation is that correlation when increase in one variable is associated with increase in another variable. Suppose we say that when price increases, supply of commodity increases, then it is positive correlation. When increase in one variable is associated with decrease in another variable, then it is negative correlation. Suppose we say that increase in price will associate with decrease in demand, it is negative correlation. Clear? Right. हाँ जी, इतना क्लियर हो गया पहले? Yeah. Yeah, ma'am. दोबारा रिपीट करूं इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव जब एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है. जैसे ये देखिए, x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज, ठीक है. और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि जब x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्ट्रेशंस हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. क्लियर? Yeah. Then on the basis of number of variables, it can be classified as simple correlation. When there are only two variables and we find out correlation between that two variables only, then it is called as simple correlation. Suppose there are only two variables, demand and price, and we find out association between these two variables, then this is called as simple correlation. And so when there are, it means there is no other variable. There will be only demand and price. Suppose there is, I have to find out the correlation between fertilizer and output. Then there are only two variables, fertilizer and output, no other variable. Clear? Yeah. इतना समझ में आ गया कि दो ही वेरिएबल्स हैं. हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो ही जो है वेरिएबल्स हैं, दो ही चीजें हैं और उन दो में हम कोरिलेशन जो है निकाल रहे हैं. उसको कहेंगे सिंपल कोरिलेशन. Multiple है when there are more than two variables. More than two means three or more variable. Suppose I find out correlation between price, income and demand, then it is multiple correlation. I find out correlation between output, fertilizer and rainfall, then it is multiple correlation. Okay. Suppose I find out correlation between output, rainfall, fertilizer and price of commodity, then it is multiple correlation, because there are more than two variables and I am taking all the variables simultaneously to find out correlation between, find out association between them. Then it is called as multiple correlation. Clear? Okay. हाँ जी, क्लियर हो गया. इतना मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? Yes, जब आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जब सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं
तो उस टाइम पे जो कोरिलेशन निकालते हैं, जो एसोसिएशंस निकालते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। जब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 3 है, चाहे 4, 5, 6, उन सब में हम इकट्ठे कोरिलेशन निकाल लें तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। पर अगर मान लो आपके पास वेरिएबल्स 2 से ज्यादा हैं, लेकिन आप कोरिलेशन सिर्फ 2 में निकाल रहे हो, बाकियों का इफेक्ट कंट्रोल करके, कि बाकियों का इफेक्ट आप कह रहे हो कि उसको नलीफाई कर देते हैं हम। जैसे मान लो वेरिएबल्स आपके पास है रेनफॉल, प्रोडक्शन और प्राइस। मैं क्या कर रही हूँ कि रेनफॉल का पे जो प्राइस के कारण इफेक्ट पड़ रहा है उसको डिलीट कर दिया, प्रोडक्शन पे जो प्राइस के कारण इफेक्ट है उसको डिलीट कर दिया, बाकी जो रेजिडुअल्स बच गए उनमें कोरिलेशन निकाली, तो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गया? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Should I continue? Yeah. Then next is methods of determining correlation. There are two methods basically that determine correlation. One is Karl-Pearson. There are concurrent division method also besides these two, but these two are the popular method and most commonly used method for finding the correlation. First is Karl-Pearson's coefficient of correlation. Karl-Pearson coefficient of correlation means when the variables are metric. I told you about metric and non-metric variables in my previous lecture. Yes, ma'am. Metric, non-metric. हाँ जी, पता है मीट्रिक क्या है? वेरिएबल्स जिनको हम मीट्रिक क्या वेरिएबल्स है बेटा? Metric refers those variables we can measure. Then metric variables. Metric variables, ma'am, which have attributes, and non-metrics, then they don't have any kind of characteristic or property or attributes. No. Metric is there. Suppose I say that I have to check whether the person, what is the gender of a person, then gender is characteristic, right? Okay, but it is not metric, non-metric. Example of non-metric, but characteristic is there. Achha, okay. Characteristic is there in both metric as well as non-metric. But okay. Characteristic which can be numerically measured, that is metric. Okay. But characteristics which can't be numerically measured, that is non-metric. Non-metric. आप numerically measure नहीं कर सकते, उसको आप कहते हो non-metric. Okay. ठीक है? या फिर जिसमें हमने कंपैरिजन कर दिया है या नॉमेनक्लेचर दे दिया कि पर्सन मेल है या फीमेल है, हमने ये कह दिया कि पर्सन हैप्पी है, नॉट हैप्पी है, हमने ये कह दिया पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, तो वो सारे के सारे उसमें करेक्टरिस्टिक तो आ रही है. मैरिज एक फीचर करेक्टरिस्टिक है, मैरिड है पर्सन या अनमैरिड है, तो ये वो एक करेक्टरिस्टिक है. इसी तरह से अगर पर्सन लेट इट बी हैप्पी है, नॉट हैप्पी है, वो भी एक इमोशंस करेक्टरिस्टिक है. समझ में आई बात? या ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक है. जैसे मान लो मैं कोरिलेशन निकालती हूँ, रैंक कोरिलेशन, लेट इट बी मैं इसमें निकालती हूँ कि पर्सन का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, और पर्सन की जो है लेट इट बी जेंडर और एटीट्यूड, वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट. ठीक है, तो वो करेक्टरिस्टिक तो दोनों ही है. That cannot numerically be measured is non-metric. They are non-metric because they can't be numerically measured. Yeah. Okay, ma'am. Clear? And Karl-Pearson, when the values can be numerically measured, that is age and weight. Okay? Age and height. These can be numerically measured. This is Karl-Pearson correlation. Association between these variables is Karl-Pearson coefficient, Karl-Pearson correlation. Now, coming to Karl-Pearson's correlation, because it is data is metric, so all the numerical calculations, they are performed as we can perform arithmetic mean here. We can find out standard deviation. So this formula we apply. This is the formula: n sigma xy minus sigma x sigma y, n sigma x square minus sigma x whole square, n sigma y square minus sigma y. ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिग्मा वाई होल स्क्वायर. ठीक है, एक्स और वाई दो आपके वेरिएबल्स हैं, लेट इट बी ये आपके दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई.
ठीक है, आप इसमें कैसे कैलकुलेशंस करते हो? ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया हुआ है मैंने। सबसे पहले आपने अज्यूम्ड मीन ले लिया। अज्यूम्ड मीन क्या लेना है? लेट इट बी 2200. 2200। ऑडिबल? या मैम, you're audible. क्लियर? Hmm. 2200 मान लो हमने ले लिया, तो ये जो है 1800 में से 2200 माइनस कर दिया, माइनस You can't dx. 1900 में से माइनस कर दिया, माइनस 2200 किया तो माइनस 300, माइनस 200, माइनस 100, सो फिर हमने 100 से डिवाइड कर दी सारी वैल्यूज को स्टेप लगाने। Step deviation. ठीक है, दिस इज टू जस्ट सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, करने के लिए कैलकुलेशन। इसका अदरवाइज और कोई नहीं है कि मैंने स्टेप डिविजन लगाना है। एसपीएसएस में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैनुअल कैलकुलेशन है, तो इसमें ऐसे है। अदरवाइज एसपीएसएस तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर देगा, उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई में हमने लिया, इसमें आपका अज्यूम्ड में लेट इट बी 7 ले लिया, सॉरी ये 6 लिया हुआ है, 6। ठीक है, तो 6 लिया, तो 5 minus 6 minus 1 0, so on. Then we calculated square of dx, then square of dy, then I take the product of dx and dy. Minus 4 minus 1 4, minus 3 minus 1 3, so on. Then I added all these values, sigma dx dy, sigma dy square, sigma dx square, sigma dy and sigma dx. Clear? And it's in the last column, dx dy. Yes. Dx is minus 4 into minus 1 4, minus 3 into 1 is 3. Minus 3 into minus 1 is 3. Minus 2 into, here it will be 0. 0, that is minus 3 it is written. 0. Yeah. That will be 0, minus 3 into 0. Right, 0, that will be 0. That's okay now. This is misprinting. It will be, right? Okay. Minus 1 into 3, minus 3. Then 0. 0 into 1, 0, so on. 2, 0, 6 and 12, yeah. Right? Yeah. Then we will add these and substitute here. 9 into 24, because formula is sigma dx dy here. Then minus sigma dx, it is 0. Then sigma dy is 9. Then 9 into 60 minus 0 square, 9 into 29 minus 9 square. This will be the answer. Clear? Yeah. Now I will perform first Karl Pearson on SPSS. This is the rank method. I have to take two variables. Let it be, I have to find out correlation between age and height. Now, age is numeric variable, right? And values I don't have to define here because I will take the actual values. This is age of participant. Then this is height of participant. Right? Right. Then values we will not define here. Then these are measures are scale because I have to take absolute values, actual values. Right? Okay, ma'am. Clear? Now this is the data view. Suppose I write down values here. What will be, let it be 12. Participant की ले रहे हैं तो 12 नहीं लेते. I don't think so. Anyone is of 12 years. 32 ले लेते हैं, ठीक है? और height, let it be, हम 5 convert कर देते हैं. 5 feet 5 inches या इस तरह से लेने की बजाय हम उसको inches में ही convert कर देते हैं सारा. ठीक है? अगर inches में convert करते हैं, let it be 65. Clear? ठीक है. और then
let it be 31. This is 62. Let it be 56, 65, 55, 54. Let it be 54. Okay, fine. Then 50. Let it be 42. And it is 59. Let it be 54. And this be 62. Let this be 61. And this is 68. 31. 70. 28. 67. 29. Let it be 54. Right? Okay, ma'am. I have taken just the hypothetical values. Then analyze descriptive statistics. Correlate is there. Analyze, correlate. Then we will find out bivariate correlation, because there are only two variables. Age, then height. We will take these two variables to variable side. Then I have to find out Karl-Pearson correlation only. Then options, mean and standard deviation you can calculate. If you want to calculate covariance, you can. Otherwise, correlation is better measure than covariance, so we are calculating that. That will suffice our purpose. Then okay, this will be the result. Average age of participant is 41.9. Average height of participant is 62.0 with standard deviation of 4.94. This is clear. देखो आप डाटा देखो, पहले मैं आपको डाटा दिखाती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा. ये देखिए, एज में वेरिएशंस आपकी ज्यादा है या हाइट में वेरिएशन ज्यादा है? मैम एज में वेरिएशंस बहुत हैं. हाँ, और हाइट में कम है. बहुत कम. यहाँ पे देखिए आउटपुट भी आपकी वही आई है ना, 13 and 4. एज 13.23 उसमें, और हाइट में 4.9. Clear? Yeah. Now, if I find out correlation between these two variables, age and height, I get 0.058. That was expected. Why expected? See the data sheet. मैंने एज ली 30 above, ये 28 above सॉरी, और उसके बाद हाइट में इंक्रीज नहीं होता जनरली. नहीं होता ना, तो मैंने वैल्यूज देखो उसके अकॉर्डिंग ही ली है. कोई 65, कोई 62, 64, which is not related to age at all. So there will not be any significant correlation between age and height in this study. Otherwise, age and height definitely are related if we take the data of single person. कि अगर हम इस तरह से डाटा लेते कि एक स्टूडेंट की एज ले लेते कि जब वो 10 इयर्स का था तो उसकी हाइट कितनी थी, 12 इयर्स का था उसकी हाइट कितनी थी, 14 इयर्स का था उसकी हाइट कितनी थी, 16 इयर्स का था उसकी हाइट कितनी थी. ठीक है, इस तरह से ले लेते. लेट इट बी, अगर कोई 10 इयर्स का है तो उसकी हाइट है 34, 12 का हो गया तो वो हाइट इंक्रीज करके 38, 14 हो गया तो वो हाइट इंक्रीज करके लेट इट बी 42. Here let it be, it is 48. Then 18 उसकी एज हो गई तो let it be this height is 52. Then 20 हो गई एज तो let this height is 54. बस उसके बाद नहीं बढ़ती है. 2 हो गई तो भी ये 54 ही है. 54. ठीक है कि एज एक लिमिट तक हाइट बढ़ती है. ठीक है, अगर हम ये लेके चलें कि एनालाइज, अब देखिए कोरिलेट करती हूँ दो वेरिएबल्स को, कोरिलेट बाइवेरिएट. अगर बाइवेरिएट कोरिलेशन लगाती हूँ इन दो वेरिएबल से, इनको वापस ले आती हूँ, इन दो वेरिएबल्स को ले जाती हूँ, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3. ठीक है, और ऑप्शंस में आप मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन ले सकते हैं. कंटिन्यू. ओके, राइट.
0.974. 0.974 आ गई, Yeah, हाई कोरिलेशन। highly correlated. ठीक है, अब देखिए, अब डाटा जो है, ऊपर वाला डाटा क्या बता रहा था, ये तो आपकी पियर्सन कोरिलेशन आ गई। नीचे क्या है आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू, SIG वैल्यू। टू टेल्ड क्यों लिखा है? क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको मैंने उस दिन बताया था कि यू टेस्ट दी any claim regarding the population by taking sample from that very population। तो यहाँ पे हम क्या claim test कर रहे हैं? हम ये claim test कर रहे हैं इसमें कि आपकी correlation जो है that is insignificant। null hypothesis हम ये लेके चलते हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, आपकी कोरिलेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। हम ये क्लेम लेके स्टार्टिंग में चलते हैं। जब हमने ये क्लेम लेके चले कि देयर इज इनसिग्निफिकेंट कोरिलेशन, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट हमारी आ जाएगी देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट कोरिलेशन का मतलब ये है इट कैन मूव इन एनी वे, ईदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब किसी भी वे में जाके हम उसकी रिलेशन निकाल सकते हैं या उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। अगर हम इस तरह से टेस्टिंग करें कि हमने ये देखा कि ना हमने कोरिलेशन इज इक्वल टू 0 ले लिया, देखिए इसका क्या बनेगा आपका क्लेम। मैं एक मिनट रुकिए, आपको लिख के दिखाती हूँ। इसमें नल हाइपोथेसिस आ जाएगी। R इज इक्वल टू, वैसे इसका साइन रो होता है, सिंबल रो लेते हैं हम। R इज इक्वल टू 0, ऑल्टरनेट आ जाएगा रो इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका है टू टेल टेस्ट। Here you have taken coefficient of correlation is insignificant. When it is 0, that means it is insignificant. When it is not equal to 0, that means it is significant. And I have taken that it can be significant in any direction. It can be greater than 0 or it can be less than 0. So it is two-tailed test. If I take alternate hypothesis like R is greater than 0, R is greater than 0, then it is right tail test. One tail and right tail test. कि हमने सिर्फ एक ही साइड पे टेस्टिंग करनी है इसमें कि ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। और अगर मान लो आपकी इस तरह से है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस R इज लेस देन 0, R is less than 0, then it is again one tail test, but it is left tail test. It is left tail test. Clear? Clear? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. चलें आगे? Yeah. Two-tail test, when we test the claim in any of the direction, whether it is right direction or left direction. But when we test claim in one direction, then it is one-tail test. If we test it in right side, that is on the positive side, then it is right tail test. If we test it on the negative side, then it is left tail test. Clear? Yes, Clear? ma'am. Yes, ma'am. Now here, when we look at the output, it is for the two-tail test. Now
I told you in the previous lecture that if SIG value is less than 0.05 for 5% level of significance, then null hypothesis may be rejected, right? Yes, ma'am. हमने बात की थी ना कि अगर ये जो SIG वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपकी 0.05 से कम आ जाए, ये वाली वैल्यू, तो null is rejected. अगर ये लेस देन 0.05 हो, तो हम कहते हैं कि null hypothesis रिजेक्ट हो जाता है. Null hypothesis rejected. Clear? और यहाँ पे क्या हो रही है? It's much greater than 0.874. Greater than 0.05 तो क्या हो रही है? So we are accepting the alternative. Exactly. Exactly. We are accepting. Alternate reject हो रही है, null hypothesis accept हो रही है. तो देखिए null hypothesis क्या है? R is equal to 0. That is correlation is Rejected. Correlation is insignificant. Clear? इसका मतलब इसमें आपकी जो है कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है. अब अगले वाला आउटपुट देखिए. अगर सेकंड आउटपुट हम देखते हैं, इसमें देखिए क्या है. आपकी क्या आ रही है SIG वैल्यू? Very much less than 0.05. Less than 0, right? और null hypothesis आपकी रिजेक्ट हो गई. null hypothesis रिजेक्ट होने का मतलब आपकी कोरिलेशन जो है दैट इज सिग्निफिकेंट. ठीक है, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट. अब एक और चीज है, जरूरी नहीं हमने सिर्फ 0.05 से कम ही देखना है. आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है कि क्या आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेना है, 2% लेना है या 1% लेना है. ये सबको पता होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. 5%, 2% और 1% हम लेते हैं. जनरली हम 5% पे लेके चलते हैं. 5% इसलिए लेते हैं क्योंकि आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपकी जो एरर है, type 1 error, that is when your null hypothesis is true but we are rejecting it, that chances are only 5%. And in social sciences we assume that 5% error can be there. But if we talk about medical sciences or sciences which are related to exactly life risk, then we don't take 0.05, then we take 0.0001. क्योंकि लाइफ रिस्क है ना. अगर मेडिसिन बनाई गई और वो मेडिसिन रिलेटेडली टेस्टिंग हो रही है उसकी और वो गलत बन जाए, 5% एरर हमने एक्सेप्ट कर ली, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि वो सीधा लाइफ रिस्क के साथ लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा. लाइफ थ्रेटनिंग. क्लियर? हाँ, जितना क्लियर हो गया. कोरिलेशन का कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पियर्समैन कोरिलेशन. स्पियर्समैन कोरिलेशन मैंने आपको पहले ही बताया है. वहां पे अप्लाई करते हैं जब आपका डाटा मीट्रिक नहीं होता, नॉन मीट्रिक डाटा है, तो वहां पे आपने अप्लाई करना है स्पियर्समैन कोरिलेशन. अब इसमें आपने रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी इसको कहते हैं, बिकॉज हियर यू ऑर्डर द डाटा. आपको ऑर्डिनल डाटा दिया होता है, रैंक्स दिए होते हैं वैल्यूज के. जैसे मान लो ये दे दिया कि फूड है, फूड की क्वालिटी को रैंक करना था, तो ये दो हमारे पास जो है पर्सन्स हैं. एक जो है रैंकिंग के लिए जज ए हैं और एक जज बी हैं, तो उन्होंने ये रैंकिंग दी. वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द रैंक्स ऑफ जज ए एंड जज बी वेदर दे आर रिलेटेड एसोसिएटेड और नॉट. तो ये सिंपल जो है मैंने फॉर्मूला लगाया, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड,
तो इसमें आपने क्या किया है कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले डिफरेंस ले लिया रैंक्स का, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को अगर मैं SPSS पे करती हूँ तो दिस विल बी लाइक, मैं उसी शीट में ही करने लगी हूँ, 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ। एक वेरिएबल ले लिया रैंक फूड जज 1, ठीक है, देन रैंक फूड जज 2, क्लियर। यहाँ पे ले लिया हमने रैंक गिवन बाय जज 1 for quality of food, for quality of food, then ranks given by judge 2 for quality of food, right? Here the data will be ordinal because ranks are given. Data will be ordinal, clear? Yeah. Now we will enter the data in data view. Let it be, this judge has given rank 2 to first item and this has given 1. Let it be, judge 2 has given rank 4, 5, 6, then let it be 3, 2, and 7 to these items. 1, 3, 7, let it be 4, 3, 5. 3 is repeated, ma'am. 3 repeated, then change it to 6 letters. Then we will find out, analyze, again correlate. There are 2 variables, so it is bivariate distribution. We will take these 2 variables on this side. Now we have to find out Spearman correlation. Carl-Pearson can't be applied here because it is a rank data. Then we will get this result. नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन हमने अप्लाई की है और ये रिजल्ट आया। Correlation is 0.357 and significant value is 0.432. That means rank correlation between ranks of judges regarding the quality of food is 0.357 and significant value is 0.432. Since significant value is greater than 0.05, therefore null hypothesis may be accepted. That is, correlation between ranks given by judge A and judge B, that is judge 1 and judge 2, are not, that is association, there should be word association or correlation. That is correlation between ranks given by judge 1 or judge 2, they are not significant, they are insignificant because null hypothesis is accepted. That is, ranks given by judge 1 and judge 2 are insignificantly correlated. Clear? हाँ जी, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी, और पूर्वा सिंह जी, आपको क्लियर है इतना? यस मैडम, क्लियर है। मैं उतार ही रहा हूँ। क्लियर है? हाँ क्लियर है मैम, किया तो है। आवाज नहीं है पूर्वा जी आ रही है आपकी। मैम ये क्लियर है, किया है मैंने। हाँ जी, हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके। हाँ मैम। Can I continue further? यस मैम, एक बार हमारे को इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरा लेके। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस पूरा रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि अगली क्लास में पूछेंगे फिर हम ये। ओके ओके, फाइन फाइन। Then we will move to next. Next is this all is simple correlation.
because I have taken only two variables here. This is bivariate correlation because we have taken only two variables. Now we will move to another correlation type, that is partial correlation. That is also, that will be covered in our lecture, today's lecture 5. मैंने पिछली बार आपको बताया था डाटा कैसे ओपन करना है. ओपन डाटा, ये मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखी है तो इसलिए डेस्कटॉप ले जाऊंगी और यहाँ पे आपके डाटा फाइल में ही लेट इट बी, दिस इज द डाटा फाइल. इसमें मेरे पास वेरिएबल्स हैं. ये लेट इट बी सीरियल नंबर, रिवीजन का जो है स्कोर दिया हुआ है कि कितनी टाइम उस पर्सन ने, स्टूडेंट ने रिवीजन की है. ये एग्जाम का स्कोर है, ये एंजाइटी का लेवल है और ये जेंडर है पर्सन का. नाउ देयर आर बेसिक, हियर देयर आर ओनली 3 metric variables. It is revision, then exam scores, then anxiety, level of anxiety. Clear? हाँ जी मधु जी, क्लियर है इतना? चलें आगे. Yes, ma'am. ठीक है, हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए. एक है टाइम स्पेंट ऑन रिवीजन, एक है एग्जाम परफॉर्मेंस और एक है आपकी एग्जाम एंजाइटी. अब 3 वेरिएबल्स में से मैंने कोई 2 में कोरिलेशन निकालनी है, कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अनदर. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन रिवीजन एंड एग्जाम एंजाइटी. ठीक है, ये अगर एक बच्चे ने रिवाइज ज्यादा किया है, ज्यादा टाइम स्पेंड किया है रिवीजन पे, तो होना तो ये चाहिए कि एग्जाम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए. पर अगर वो पर्सन, बच्चा एंजाइटी ज्यादा ले लेता है तो उसका रिवीजन का असर एग्जाम परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव नहीं जाएगा. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाके कोरिलेट, पार्शियल. मैंने ले लिए 2 वेरिएबल्स की टाइम स्पेंट ऑन रिवीजन और एग्जाम परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, और मैंने कंट्रोल कर दिया इसको एग्जाम एंजाइटी के साथ. राइट? Okay, ma'am. ठीक है, अब ऑप्शंस में जाइए आप. ऑप्शंस में जाके आपने मीन्स और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर लेने हैं वो ले सकते हैं, और जीरो ऑर्डर कोरिलेशन. अब ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन क्या होती है, जब आपने 2 वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकाली है ना, कि आपने किसी को कंट्रोल नहीं किया है, तो दिस इज जीरो ऑर्डर कोरिलेशन. जब आप एक वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हो और जो आपकी कोरिलेशन आ रही है उसको फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन कहते हैं. जब आप 2 वेरिएबल्स को कंट्रोल करके कोरिलेशन निकाल रहे हो उसको सेकंड ऑर्डर कोरिलेशन कहते हैं. आप कितने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हो और कोरिलेशन निकाल रहे हो, उसको हम उसके अकॉर्डिंगली जो है हम Order. डिग्री लेते हैं कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं. ठीक है, ऑर्डर डिफाइन जो है उसके अकॉर्डिंग होता है. Okay. हाँ जी, फिर हम कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करके हम जो है इसको ओके कर देंगे. देखिए ये आपके रिजल्ट्स आ गए. टाइम स्पेंट रिवाइजिंग, एवरेज इज 19.85, with standard deviation 18.15. Then average performance in exams is 56.57 with standard deviation 25.9. Then average performance, average level of anxiety during the exams is 74.34 with standard deviation 17.18. That means on an, देखो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एंजाइटी का लेवल कितना ज्यादा है. और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है उसकी 17 है. इसका मतलब है कि एंजाइटी का लेवल स्प्रेड जो है वेरिएशन ज्यादा है. दैट मींस हर बच्चे को एंजाइटी का लेवल है जब उसने एग्जाम दिया है. और टाइम स्पेंट जो है वो 19.8 है और इसमें भी वेरिएशंस जो है वो 18.15 है. इसका मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, पर एग्जाम परफॉर्मेंस में काफी वेरिएशंस है 25.9 और एवरेज स्कोर्स जो है वो सिर्फ 56.57 है. अब ये जो पहला आपका यहाँ पर इतना टेबल है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक,
ये आपका जो है कंट्रोल वेरिएबल नन है, इसका मतलब हमने कुछ कंट्रोल नहीं किया, तो ये सारी की सारी जीरो ऑर्डर कोरिलेशन की वैल्यूज हैं इतनी, ठीक है। जीरो ऑर्डर कोरिलेशन का मतलब ये है कि ये बता रहा है कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेंट एंड एग्जाम परफॉर्मेंस विदाउट कंट्रोलिंग एनीथिंग, सिंपल कोरिलेशन जो मैंने पहले आपको बताई है। इट्स सिंपल कोरिलेशन इज 0.397 and significant value is 0.000. That means this correlation is significant. Similarly, correlation between time spent in revision and exam anxiety is minus 0.709. That means if student is not facing any anxiety, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है एग्जाम की, तो वो रिवीजन पे कम टाइम लगा रहा है, यही मतलब है ना, ठीक है। नेगेटिव है ना, तो उसको जिस बच्चे को कम टेंशन है वो कम टाइम रिवीजन पे लगा रहा है, जिसको ज्यादा टेंशन है ज्यादा टाइम दे रहा है। टाइम सॉरी ये उल्टा है कि एंजाइटी का लेवल ज्यादा है और टाइम स्पेंट इन रिवीजन कम है, ये आ रहा है इस पे। एंजाइटी का लेवल जितना ज्यादा है उतना टाइम स्पेंट इन रिवीजन कम आ रहा है। डायरेक्शन इज हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जितना पर्सन ने कम टाइम लगाया रिवीजन में उतनी जो एंजाइटी का लेवल ज्यादा है। टाइम स्पेंट रिवाइजिंग एंड एग्जाम एंजाइटी, इसका मतलब जिसने ज्यादा रिवाइज किया है उसको एंजाइटी कम होगी, और जिसने कम रिवाइज किया है उसको एंजाइटी का लेवल ज्यादा। नेगेटिव कोरिलेशन आने के पीछे तो यही रीजन हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता कि एंजाइटी ज्यादा है और बच्चा रिवाइज कम करे, ये तो पॉसिबिलिटी होगी। ये इस तरह से रिलेशन हो सकता है क्योंकि कोरिलेशन आपको कॉज इफेक्ट नहीं बताती है, कोरिलेशन सिर्फ एसोसिएशन बताती है। तो ये एसोसिएशन नेगेटिव आने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि बच्चे ने ज्यादा रिवीजन पे टाइम स्पेंड किया है तो उसको एंजाइटी का लेवल कम है, और ये सिग्निफिकेंट भी है कोरिलेशन हमारी, वैल्यू लेस देन 0.011, ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये आपकी सारी जीरो ऑर्डर कोरिलेशंस देखो आप सिग्निफिकेंट आ रही हैं, सबका 0.000 आ रहा है, इसका मतलब एग्जाम परफॉर्मेंस और रिवीजन पे जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है। इतना रिवीजन पे ज्यादा टाइम लगाया उतनी ही एग्जाम परफॉर्मेंस बेटर है, और वो भी जो है आपकी सिग्निफिकेंट। इसी तरह से आपकी जो है एग्जाम एंजाइटी और एग्जाम परफॉर्मेंस देखो नेगेटिव आ गई रिलेशन, मतलब एंजाइटी का लेवल ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है बच्चे की, ठीक है, और ये भी सिग्निफिकेंट आ रही है यहाँ पे। अब अगला देखो एग्जाम एंजाइटी और टाइम स्पेंट, वो तो सेम ही आएगा क्योंकि आपको पता है ये सिमेट्रिकल जो है आपकी बनती है मैट्रिक्स, वो सेम ही आएंगे, मेनली तीन ही कोरिलेशन आएंगे, ये 0.397 -0.701 और -0.44। अब मैंने क्या किया है, एग्जाम एंजाइटी को कंट्रोल कर दिया। अब निकाला कि क्या बच्चा रिवाइज कर रहा है ज्यादा, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है, देखो यहाँ पे कर रही थी और सिग्निफिकेंट आ रही थी 0.397 और सिग्निफिकेंट यहाँ पे देखो क्या आई कि रिवीजन उसने ज्यादा की और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गई। कोरिलेशन पहले थी 0.397, अब कितनी रह गई 1.133, पहले से कम हो गई, ठीक है। और जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 0.184, वो जो है ये बता रहा है कि आपकी कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब अगर मैं एंजाइटी का इफेक्ट कंट्रोल कर देती हूँ तो उस केस में जो रिवीजन पे टाइम स्पेंड किया है और एग्जाम परफॉर्मेंस में कोई कोरिलेशन नहीं रह जाती है आपस में। इसका मतलब एंजाइटी इफेक्ट कर रही थी जो ये कोरिलेशन आई है, उसमें एंजाइटी का इफेक्ट था बीच में। अब हम एक और निकाल के देखते हैं कि हम कंट्रोल करते हैं रिवीजन को और देखते हैं क्या एग्जाम एंजाइटी और परफॉर्मेंस रिलेटेड थे, कोरिलेट पार्शियल। अब हमने क्या किया, एग्जाम एंजाइटी जो है वो कंट्रोल वेरिएबल नहीं लिया, टाइम स्पेंड को ले लिया कंट्रोल वेरिएबल, टाइम स्पेंड को कंट्रोल वेरिएबल ले लिया और परफॉर्मेंस और एग्जाम एंजाइटी में कोरिलेशन निकाला। अब जब इसमें कोरिलेशन निकालते हैं तो ये देखो ये आ गया आपकी कोरिलेशन, जीरो ऑर्डर तो सेम रहेगी। अब ये आपका नेगेटिव आया है और सिग्निफिकेंट भी आया है क्योंकि 0.05 से छोटी है वैल्यू, 0.05 से छोटी है ना। यस मैम, सिग्निफिकेंट भी आ गया। इसका मतलब एग्जाम की परफॉर्मेंस पे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ रहा है, एंजाइटी का एज कंपेयर टू रिवीजन।
ठीक है, रिवीजन को मैंने कंट्रोल किया पर ये नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एंजाइटी का लेवल ज्यादा है, तो एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कंपैरेटिवली कम हो रही है। कम हो रही है। क्लियर हुई बात, और वो सिग्निफिकेंट भी है। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना पहले? Normally doubt है, why do we use control variables? Pardon, repeat, Ma'am. please repeat. Yes, ma'am. Why do we use control variables? Which variable? Controlled variables. Why do we use controlled variables? Control variable. जी, Control जी. variable हम इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली we want to let it be subtract the effect of that very variable for finding out the relationship between other two variables. देखो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। जी आपने आउटपुट है आपकी, ठीक है जी जी आपने आउटपुट पे फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट निकालना है, लैंड का एक पीस है आपके पास, वहां जी. पे आपने जो है अलग फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया। अब आपने देखना है कि क्या वो फर्टिलाइजर आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है। अब उस पे जब ये इफेक्ट निकालना है, मान लो फर्टिलाइजर आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा ना कि फर्टिलाइजर के अलावा कई और सारी चीजें भी तो होंगी जो जी, आउटपुट को जी. इफेक्ट कर रही हैं। हाँ, ठीक है, हाँ. मैंने लैंड के 10 टुकड़े ले लिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी का लेवल नहीं अलग अलग होएगा, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ सॉइल डिफर करेगी। जी फर्टिलाइजर मान लो मैंने अलग अलग अप्लाई किया, पर उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सॉइल भी तो डिफर करगी उनमें। हाँ हाँ ठीक है ना, तो इसका मतलब आउटपुट पे सिर्फ फर्टिलाइजर का इफेक्ट नहीं आया, क्वालिटी ऑफ सॉइल का भी इफेक्ट आएगा, आएगा ना। जी जी अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ फर्टिलाइजर का इफेक्ट मिले, क्वालिटी ऑफ सॉइल का इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे उसमें। अच्छा. तो मैं क्या करूंगी, क्वालिटी ऑफ सॉइल का इफेक्ट निकाल दूंगी उसमें से। वो निकालने के लिए उसको कंट्रोल वेरिएबल लूंगी। अच्छा. ठीक है, कंट्रोल जी. वेरिएबल लेने का मतलब ये है कि मैंने 10 लैंड के पीस लिए, 10 के 10 लैंड के पीस लिया तो एक जैसी सॉइल क्वालिटी की हो। ठीक है, और प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो 10 के 10 सॉइल क्वालिटी सेम वाले पीस मिल जाए हमें। जी. अगर वो नहीं मिल रहे तो हम रिलेशन में से स्टैटिस्टिकली वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इफेक्ट। ओके. और वो इफेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेजिडुअल बच जाएगा उसमें सिर्फ फर्टिलाइजर का इफेक्ट रह जाएगा। अच्छा. क्लियर हुई बात? जी जी मैम, थैंक यू. क्लियर हुई. ठीक है, जी. एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। श्रीनिवास जी क्लियर है? देवशीष जी क्लियर है आपको? ऑडिबल नहीं है आवाज, देवशीष जी ऑडिबल है? Yes, ma'am, it's audible. क्लियर है? Yes, ma'am, it's clear. ओके, कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन क्लियर हैं दोनों टॉपिक्स, तो शुड आई मूव टू काई स्क्वायर? yes जी, ma'am. ma'am. क्लियर है ये दोनों टॉपिक्स, तो हम काई स्क्वायर पे चलें। Yeah. ओके, नेक्स्ट इज काई स्क्वायर। अब व्हाट इज काई स्क्वायर बेसिकली? देखो, काई स्क्वायर भी एसोसिएशन नहीं निकालता है वेरिएबल्स में, जैसे कोरिलेशन निकालते हैं ना एसोसिएशन, वैसे काई स्क्वायर भी एसोसिएशन नहीं निकालता है वेरिएबल्स में। काई स्क्वायर टेस्ट के फर्दर कई सारे जो सब कैटेगरीज हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है दैट इज इट टू फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल्स में एसोसिएशन निकालनी है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। तो आपको हो गया कि कोरिलेशन क्यों नहीं, काई स्क्वायर क्यों? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में कि जब कोरिलेशन वो काम कर रही है तो काई स्क्वायर का क्या यूज रह गया? Yes ma'am. अब देखो, कोरिलेशन में मैंने आपको बताया कि ईदर देयर शुड बी एग्जैक्ट वैल्यूज, स्केल वैल्यूज, और देयर शुड बी ऑर्डिनल डाटा। यही बताया ना दो चीजें, ईदर देयर शुड बी ऑर्डिनल डाटा और देयर शुड बी एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, अगर आपका ऑर्डिनल डाटा है तो आप रैंक कोरिलेशन लगा लोगे, अगर आपका डाटा जो है स्केल डाटा है तो आप क्या लगाओगे? आप Carl लगाओगे, Pearson. ठीक है, कार्ल पियर्सन डाटा। पर अगर मान लो नॉमिनल डाटा आ गया, नॉमिनल डाटा भी हो सकता है ना, कि आपको मान लो दो करेक्टरिस्टिक्स दे दी, उसमें कोरिलेशन या एसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के लिए, कोरिलेशन वर्ड नहीं यूज करते हम। करेक्टरिस्टिक्स में जब रिलेशन निकालना होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसोसिएशन। मान लो मैं आपको कह दूं कि आपने देखना है कि जेंडर
और जो है पर्सन के हैप्पीनेस लेवल में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब जेंडर जो है, हाँ जी, क्वालिटेटिव टेस्ट। जेंडर और श्रीनिवास जी कुछ कह रहे हैं आप, मुझे आवाज नहीं मैडम आ रही। qualitative information will be a राइट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नो डाउट, इट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। नॉन मीट्रिक डेटा दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जब आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है तभी हम chi-square टेस्ट लगाते हैं, इसीलिए इसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से ज्यादा जाना जाता है। इसका एक यूज पैरामीट्रिक का भी होता है वेरिएंस का कंपैरिजन करने के लिए, पर मेनली इसको नॉन पैरामीट्रिक के लिए यूज करते हैं। जब नॉन पैरामीट्रिक के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो वो नॉन पैरामीट्रिक में सबसे पहले हम ये देखना होता है हमने कि आपका जो है एसोसिएशन दो वेरिएबल्स में है कि नहीं है। अब एसोसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले ये देखना है कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो नॉन मीट्रिक हों। सबसे पहले chi-square मीट्रिक में नहीं लगता, नॉन मीट्रिक वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। उस पर हम देखेंगे कि आपके जो है अगर तो वेरिएबल्स नॉन मीट्रिक है तो हम आपको जो है chi-square टेस्ट लगा लेंगे। ये टेस्ट दिया किसने, कार्ल पियर्सन ने। जब आपकी वैल्यूज मीट्रिक होती हैं तो उस टाइम पे कार्ल पियर्सन ने ये टेस्ट किया है नॉन मीट्रिक वैल्यूज के लिए कि chi-square टेस्ट आप लगा सकते हैं। है क्या है, आपको करेक्टरिस्टिक्स दी होती है और फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर मेल, हाउ मेनी पर्सन्स आर फीमेल, हाउ मेनी पर्सन्स आर हैप्पी, हाउ मेनी पर्सन्स आर नॉट हैप्पी, हाउ मेनी मेल आर हैप्पी, हाउ मेनी फीमेल आर हैप्पी। राइट, बात समझ में आई? कि आपको नंबर दिया होता है कि कितने लोग जो है वो खुश हैं, कितने नहीं खुश हैं, कितने मेल खुश हैं, कितने फीमेल खुश हैं, वो सारा का सारा इसमें आप कवर करते हो। chi-square टेस्ट जो है ये स्टैटिस्टिकली जो है इंडिपेंडेंस या गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम यूज करते हैं। कि गुडनेस ऑफ फिट किसको कहते हैं हम, लेट इट बी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी और डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये कहा कि क्या वो जो हाइपोथेसिस है आपकी, क्या वो हाइपोथेसिस के साथ आपकी जो है फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं, जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं और जो हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर वो आपकी मैच कर रही है तो हम कहते हैं फिट इज गुड। पर अगर आपकी ऑब्जर्व्ड और आपकी जो है हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती हैं तो हम कहते हैं फिट इज नॉट गुड। सबसे पहले इसका टेस्टिंग इंडिपेंडेंस का टेस्ट है और दूसरा टेस्ट जो है इसका वो एट्रीब्यूट्स का है। इसमें कुछ हम एजम्पशंस लेके चलते हैं। एजम्पशंस होती हैं कि आप chi-square टेस्ट लगाने के लिए आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है वो ग्रेटर देन 50 हैं और सैंपल ऑब्जर्वेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट है और आपका जो एक सिंगल थ्रेटिकल फ्रीक्वेंसी है जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं दैट शुड बी लेस देन 5। जो आपकी सिंगल आपकी जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है दैट शुड बी दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। if it is less than 5 then chi-square test cannot be applied। तो उसके लिए जो है हमें फर्दर जो है पूलिंग करनी पड़ती है, फिर chi-square टेस्ट अप्लाई होता है। SPSS वो काम अपने आप कर देता है, SPSS में आपको ये पूलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। chi-square के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सिग्मा O माइनस ई स्क्वायर बाई ई। O इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, E इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज हाइपोथेटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाई E। मान लो ये आपका एक क्वेश्चन है कि of the cars on a used car lot 70% have air condition and 40% have CD player, 20% of cars have both। इसका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी उसने CD player, राइट? क्लियर? एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी CD player, दूसरी क्या है एयर कंडीशनर। तो मैंने एक लिख लिया AC है और एक लिख लिया कि AC नहीं है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो AC होगा या नहीं होगा। एक मैंने लिख दिया कि CD प्लेयर उसमें है और CD प्लेयर नहीं है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दोनों साइड्स पे ले ली। अब आपकी जो है कितनी कार्स हैं जिसमें जो है एयर कंडीशनर है 70%, तो ये 0.7 ले लिया। क्लियर होगी बात? ठीक है। और 40% कार्स में CD प्लेयर है तो 0.4 ले लिया।
पूरा 100% होंगी, तो कितने में एसी नहीं रहा? 30%, तो ये 0.3 हो गया। कितने में सीडी प्लेयर नहीं रहा? 60% में, तो इसको 0.6 कह देंगे। अब कितने में जो है आपका, ये आपको बता दिया कि 20% ऑफ कार्स हैव बोथ, इसका मतलब एसी और सीडी कितने में है? 20%। इसका मतलब ये डाटा आपको दिया हुआ है, और आपको ये वाला डाटा दिया हुआ था 0.7, और ये डाटा दिया हुआ था 0.4। ये 3 वैल्यूज दी थी ना, बाकी आपने सारी कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट की? ये 1 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट हो गया 0.3, 0.7 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट हो गया 0.5, 0.4 में से ये 0.2 सब्ट्रैक्ट हो गया 0.2, 0.6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो गया ये 0.1। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है इसकी। मान लो कुछ पर्सन्स को हम ड्रग दे रहे हैं और कुछ पर्सन्स को नहीं दे रहे। अब ये जो है क्योर हुए हैं या नहीं, इसके स्पेलिंग क्योर के जो है यहाँ पे गलत आ गए। ठीक है, अब ड्रग जो है ये दी है और कितने परसेंट क्योर हुए हैं? ये 55 है। अगर ड्रग नहीं दी और कितने परसेंट क्योर हुए हैं? ये 65 है। ठीक है, इसी तरह से ड्रग दी है और पर्सन क्योर नहीं है, वो 45 है, और हमने ड्रग नहीं दी है और पर्सन नहीं क्योर्ड है, वो 35 है। तो ये आपका जो है, इन दोनों में हमने अगर एसोसिएशन निकालनी है तो हम काई स्क्वायर लगाएंगे। अब इसकी हाइपोथेटिकल वैल्यूज निकालेंगे। हाइपोथेटिकल वैल्यूज कैसे निकलती हैं? वो निकलती हैं, लेट इट बी, मैंने पहले इसके लिए निकालनी है कि ड्रग और क्योर्ड, इसमें क्या आपकी हाइपोथेटिकल वैल्यू आ रही है। तो इधर से ड्रग का टोटल ले लेंगे 100, क्योर्ड का टोटल ले लेंगे 120 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया 60। क्लियर? हाँ जी, इतना समझ में आ गया? हाँ मैम। रिपीट करूँ किसी और के लिए? एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, जैसे ये देखिए, ये मैंने 45 के लिए निकालना है। इसके लिए एक साइड पे 100, एक साइड पे 80, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय दिस 200, तो ये आपकी वैल्यू बन गई 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 200, दिस इज 40। अच्छा, ठीक है, जी क्लियर होगी बात? जी जी जी। उसके बाद ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं आपकी 55, और उसके सामने एक्सपेक्टेड है 60, तो ये हमने इस तरह से लिख दी, 55 उसके सामने 60, ये 45 उसके सामने एक्सपेक्टेड कितनी है? 40, वो हमने इस तरह से लिख दी। ये आपकी ऑब्जर्व्ड कितनी है? 65, उसके सामने एक्सपेक्टेड 60, वो हमने इस तरह से लिख दी। 35 और उसके सामने 40, ओ माइनस ई निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसको डिवाइडेड बाय ई करके ऐड कर दिया। ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई की एडिशन, दैट इज काई स्क्वायर, इट इज वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे आती हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं कि आपकी कितनी रोज हैं, कितनी रोज थी क्योर्ड एंड नॉट क्योर्ड 2, और कॉलम्स कितने हैं? ड्रग एंड नो ड्रग 2। तो आपने क्या करना है? रो -1, कॉलम -1, 2 -1, और ये भी 2 -1, दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। 1 विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस केस। मान लो आपकी रोज 3 होती तो 3 -1 2 ले लेते, और कॉलम्स 2 -1 1 ले लेते, तो आपकी जो है 2 आ जाती डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? यस मैम। इतना समझ में आ गया? मैम आपके जो मेन एग्जांपल पे है कि यूसेज ऑफ ड्रग एंड नो ड्रग थे, यहाँ मधु पर आवाज कट रही है, प्लीज रिपीट। मैम आपका जो एग्जांपल लिया है आपने, एक ड्रग का और एक नो ड्रग का, हाँ उसमें जी, और ई कहाँ पर हो, आई मीन है? उसमें क्या ओ आप एक फॉर्मूला ले रही है ना, ओ माइनस ई। फॉर्मूला ले रही हूँ जो, वो कह रहे हो? जी 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 हाँ जी, ये फॉर्मूला ले रही थी बेटा, ये देखिए, ओ माइनस ई स्क्वायर बाई ई। जी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे। ये ऑब्जर्व वैल्यूज का टेबल था, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई, दोनों का डिफरेंस लिया, उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय ई कर दिया। मैम कैन यू शो द टेबल once again of observed and then श्योर, expected? दिस इज ऑब्जर्व्ड, ओके तो एक्सपेरिमेंट करके आपके पास आती हैं वैल्यूज, जी दिस जी इज जी। एक्सपेक्टेड। अच्छा ठीक है, जी मैम। ठीक है, जी 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 क्लियर? जी मैम।
अब एक जो है मैंने आपको बताया टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। अगर आपने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको जो नंबर आ रहा है आपका डाइस पे, आपने एक डाइस थ्रो किया है, डाइस पता है ना, सबने लूडो खेली होगी, ठीक है? कितनी वैल्यू, कितने नंबर्स होते हैं उस पे? 6 तक होता है मैम। ठीक है, वो 6 ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैंने उसको 180 टाइम्स टोस किया, 180 टाइम्स टोस करके मैंने देखा 1 कितनी बार आ रहा है, 25 टाइम्स, 2 कितनी बार आ रहा है, 35 टाइम्स, 3 कितनी बार आ रहा है, 40 टाइम्स, 4 कितनी बार आ रहा है, 22 टाइम्स, 5 कितनी बार आ रहा है, 32 टाइम्स, 6 कितनी बार आ रहा है, 26 टाइम, तो टोटल कितना हो गया, 180, ठीक है? अब मैंने निकालना है कि वेदर द डाई इज अनबायस्ड और नॉट, ठीक है, कि वेदर द डाई इज अनबायस्ड और नॉट। तो अनबायस्ड का मतलब ये हो गया कि आपका जितनी बार आप निकालोगे वो आपकी सेम जो है फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए। अनबायस्ड तो तभी है ना कि 1 भी उतनी बार आया, 2 भी उतनी बार आया, 3 भी उतनी बार आया, 4 भी उतनी बार आया, 5 भी, मतलब इक्वल चांसेस हैं 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के। क्लियर हुआ? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? हाँ मैम। चलें आगे? हाँ देखो, अगर मैंने ये कह दिया कि वो इक्वल चांसेस हैं, दैट मीन्स आपका 30 जो है 180 टोटल थे ना, तो 30 हर एक में आने चाहिए थे क्योंकि 6 है ये, 6 बार 180 डिवाइड बाई 6, हम्म ठीक है? ये मेरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये O माइनस ई निकाल दिया, 20 माइनस